Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to all the students here with me, and even those students who are watching the recording of this class later on. I hope all of you have been enjoying life and you have been taking care in these days, because these days we have been facing a very difficult situation. That's why we are not allowed to go to our schools and colleges and get education over there. And it is because of the initiative of ICB, and it is a brainchild of Dr. Ali Ahmad Kharal Sahab, that he inspired all the faculty members of ICB to start online classes or to record lectures and then upload them on the official YouTube channel of ICB, so that the students who are sitting at their homes, they can benefit to some extent. So some students who joined live, they also get some benefit, and even afterwards, we put these recordings on YouTube and Facebook, so some students can benefit from the recordings. So today, we had already started chapter number 2 of this book, and we had solved a few exercises. Next exercises we'll be doing today, inshallah. And we were here somewhere. Okay, we had done this exercise number 3. क्वेश्चन आंसर कब होंगे फर्स्ट चैप्टर के? Okay, Alvi Sahab, I answered it yesterday. मैंने कल की क्लास में ये बताया था कि कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे, जो कॉलेज की वेबसाइट है, उस पर आपको लिंक्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, मुख्तलिफ लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए। वो भी अच्छे लिंक्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आप वहां से डाउनलोड करेंगे और फिर उन पे हम डिस्कशन किसी दिन यहाँ रख लेंगे कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं। फिर आपका टेस्ट भी किसी दिन हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है? अलीशा, आपको बात समझ आई? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो हम कल कहाँ थे? तकरीबन ये एक्सरसाइज हमने कर ली थी। Is that okay? Those who are attending the class yesterday, can they tell me? ये मैंने आपको, ठीक है? तो आज हम इस डिक्शनरी, सर एक दफा फिर भी करा दे, क्योंकि गलतियां भी हुई थी। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा से हल कर लेते हैं। दैट्स ओके। यहाँ से पार्ट 2 से, इज दैट ओके? ओके ओके। सो मुझे कौन बताएगा, travel is a great way to experience different cultures, true or false? Nofil? True, sir. That was a true statement from the text, and we must place a tick mark or the true word in front of it. कल इस टेस्ट में भी ये चीज मौजूद थी। उमेर मुझे दूसरा बताएंगे। Chinese New Year is not a traditional Chinese holiday. True or false, Umair? False. False. Very good. Because Chinese New Year is a traditional holiday. यहाँ not लिखा गया है, तो not उसकी negation करता है, इनकार करता है। नंबर 3, यहाँ पे नंबरिंग की भी थोड़ी सी गड़बड़ है, but we are at line number 3 in exercise number 2. Chinese New Year refers to lunar New Year. ये मुझे कौन बताएंगे? 1 मिनट, मेरे पास मोइज है, अब्दुल मोइज। Chinese New Year refers to lunar New Year. Is that correct? True or false? True, sir. True, because this information was given in the text that it refers to, or it is called with another name, and that is lunar New Year. Number 4, we'll move on to number 4, and Muhammad Rayyan. Muhammad Rayyan would answer me. Holi is a religious festival celebrated by Christians in India and Nepal. Yes, Rayyan. False. It is a false statement. According to the text we studied day before yesterday, this is a celebration. This is a festival celebrated by Hindus, not Christians of India and Nepal. Number 5, Kashan Bashir.
is going to answer. Carnival of Venice is celebrated in France. Is that true or false, Kashan? Kashan. True. Kashan says true. Can anyone else justify or testify? Rayyan Tahir? Sir, false है. This is a false statement, Kashan Bashir, because when we were reading the text, we were told that Carnival of Venice. Venice name is there. Venice is not a French city. This city does not is not situated in France. It is situated in Italy. It is an Italian city. So it is a false statement. Next one is Oktoberfest festival is celebrated in Munich, Germany. And Salman Khan is going to answer us whether it is true or false. Sulaiman Khan. True. Sir, True. 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 Sulaiman Khan, you are true. That's good. And the last statement, Dia de Muertos is a Mexican holiday. And who is going to tell me about it? Alvi Sahab. Ali Ahmed Alvi. Dia de Muertos is a Mexican holiday. True or false? True, because very good. It was told us in the text. Very nice. And here is the next exercise, exercise number 3. Write the antonyms of the following. And one by one, once again, you would be letting me know what should be the antonym for great novel. Sir, little or small? Little or small or tiny, right? And the next Yes. one is the biggest. Umair. Umair, what is the antonym for biggest? Sir, least. Biggest का least नहीं होगा. Sir, smallest. Smallest is good. Okay, smallest. New is the next word. What should be the antonym, Muhammad Rayyan? Muhammad Rayyan, unmute your mic first. Sir, old. Old, very good. Next one is beginning. Sulaiman Khan, what should be the opposite of beginning? And. End or ending, both words are correct. Okay, next word is similar. Ali Ahmed Alvi, what should be the antonym for the word similar? Ali Ahmed Alvi, का नहीं आता. कल नहीं आए थे. अब्दुल मुईज बताएंगे. Similar. Sir, मैं बताऊं? फिर से बताएं मुईज. बेटा बाकी लोग अपने अपने माइक्स खुद म्यूट कर लिया करें, मुझे बार बार ना करने पड़े. बात की माइक म्यूट कर दें. मुईज सॉरी. फिर से बताएं मुईज. Sir, similar का tricky. ट्रिकी Yes, sir. Sir, नहीं. रैयान ताहिर, you give it a try. रैयान ताहिर. Abdullah Imran can tell you. He is raising his hand. सिमिलर का डिफरेंट. Similar का different या dissimilar दोनों इसके हैं. डिसिमिलर से. Dissimilar भी ठीक है, different भी ठीक है. Okay. Then we have next word and Mohammed Galaxy A10 ये बताएंगे बेस्ट का. हाथ रेज किया इन्होंने. किस चीज का सर? बेटा बेस्ट का. बेस्ट का? जी. वर्स्ट. Worst. WORST. Very good. Worst. Worst. Very nice. And the last word is colorful. वज्जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं. वज्जी बताएंगे कलरफुल का ऑपोजिट या एंटोनिम क्या होगा. sir, Vajji will have- colorless. 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 Very good. Very good. Colorless. हमाद भी हमारे साथ है. इत्तफाकन उनसे मैं कुछ नहीं पूछ सका. सॉरी हमाद. आगे मैं आपसे पूछूंगा. ठीक है. अच्छा. Yes, sir.
मैं असल में वीडियो जब ये स्क्रीन शेयर करता हूं तो मेरे पास वीडियो 2-4 खिड़कियां खुलती हैं, विंडोज खुलती हैं। ओके, हियर यू आर गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? कैन नोफल रीड दिस थिंग, द डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी इन 2 लाइन्स? इट इज गिवन, रीड इट अलाउड। Dictionary. A book that lists the words of a language in alphabetical order and gives their meaning, or that gives the equivalent words in a different language. Very good. Dictionary. Synonyms. Wait. Only 2 lines. So dictionary, आपने, हम इसको डिक्शनरी कहते हैं, सही तलफ़्ज़ डिक्शनरी होता है। तो डिक्शनरी क्या करती है? डिक्शनरी एक बुक किसी सूरत में होती है, that happens to be a book। उसमें लिस्ट्स होती हैं वर्ड्स की, और वो वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स, किसी भी लैंग्वेज की हम डिक्शनरी उठाते हैं, एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो वर्ड्स लिस्ट फराहम की हुई होती है, और वो उनकी मीनिंग्स बता रही होती है, या उनकी इक्विवेलेंट वर्ड्स बता रही है, मतलब उनसे मिलते जुलते अल्फाज, उनके बराबर के अल्फाज बता रही होती है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर हम जब अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो हम अंग्रेजी की डिक्शनरी उठाते हैं और अमूमन उर्दू में उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि उससे मिलते जुलते अगर उसी लैंग्वेज में वर्ड्स पाएं तो उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का मुझे हम्माद पढ़ के बताएंगे यहां से कि क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। हम्माद, ये 2 लाइनें। Lexicon, word book, glossary, vocabulary list, vocabulary word list, word finder, and more. Okay, synonyms क्या होते हैं? Synonyms are words with the same meaning to another word। उसको हम लेक्सिकॉन भी कह सकते हैं, वर्ड बुक भी कह सकते हैं, ग्लोसरी भी कह सकते हैं। बेटा प्लीज put your mic on mute, everyone। When you are asked to speak, you can speak and then turn it on mute, so that this voice may go very clear to each and everyone. Okay, nice। Okay, the next one is this I was reading, लेक्सिकॉन भी इसको कहते हैं, सिनोनिम को वर्ड बुक भी कह सकते हैं। इसमें भी इस तरह लिस्ट होती है, डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट सिनोनिम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, गाइड वर्ड्स। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, व्हाट शुड यू डू? अगर आपके पास डिक्शनरी तो मौजूद है और आपने किसी वर्ड की मीनिंग ढूंढनी है, हालांकि इस लेवल पे आपको आता भी होगा, उसके लिए आपको सिखाया जा रहा है कि गाइड वर्ड्स को देखें। गाइड वर्ड्स क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे मोहम्मद रैयान। गाइड वर्ड्स से आगे जो डेफिनेशन दी हुई है, मोहम्मद रैयान, ये 3 सेंटेंसेस हैं, पढ़े जरा। Yes, sir. Guide words are words that are on the top of every page. They help to guide you to the right page. The first guide word is the first main entry on the page. The second word is the last main entry on the page. Very good। किसी भी डिक्शनरी को जब आप ओपन करते हैं तो अगर डिक्शनरी के पेज की एक साइड पे, यहाँ देखें मैं एक जगह कर्सर घुमा रहा हूँ, इस बुक में तो नहीं है, यहाँ पर एक वर्ड दिया होता है बुक के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर और एक टॉप राइट कॉर्नर पर लफ्ज दिए हुए होते हैं। तो जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है वो आपको गाइड कर रहा होता है इस डिक्शनरी पे पहला वर्ड कौन सा है, और जो इस तरफ दिया हुआ होता है अमूमन वो गाइड कर रहा होता है कि लास्ट वर्ड कौन सा है। क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं तो कभी कभार आपको अंदाजा हो जाता है जो वर्ड आप तलाश कर रहे हैं वो इनके दरमियान आता होगा तो इस पेज पे होगा, इनके दरमियान नहीं आता तो किसी अगले पेज पे होगा। ये बात समझ आई आपको? गाइड वर्ड्स आर वर्ड्स दैट आर ऑन द टॉप ऑफ एवरी पेज, हर पेज के ऊपर दिए हुए होते हैं। दे हेल्प टू गाइड यू टू द राइट पेज, इससे आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आपका वर्ड BAT से स्टार्ट होता है और अभी आपने पेज खोला हुआ है जिसपे ANT लिखा हुआ है शुरू में, तो यकीनन आप उस पेज पे पूरा पेज नहीं ढूंढेंगे कि मुझे BAT मिल जाए। ऐसे ही है। The first guide word is the first main entry on the page. The second word
is the last main entry on the page. वही जो मैंने उर्दू में बताया कि पहला जो गाइड वर्ड होता है on the top one side of the corner, ये आपको गाइड कर रहा होता है कि उस पेज पे पहला वर्ड कौन सा है, और यहाँ आपको बताया जा रहा होता है दूसरे साइड पे कि लास्ट वर्ड उस पेज पर कौन सा है। ओके जी, अब आपसे कहा जा रहा है कि ये छोटी सी आप एक्सरसाइज करें। टेक आउट योर डिक्शनरी एंड ओपन पेज नंबर 50, 120, 250 of your dictionary. Means 3 different pages you are supposed to open. Write guide words and last main entry of these pages in your copy. So फिलहाल हम इस एक्सरसाइज को यहाँ तो नहीं करेंगे, अभी डिक्शनरी सबके पास हो ना हो, तो फिलहाल ये समझने की हद तक काफी है। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आपने करनी है, ये आपका होमवर्क होगा आज का। कहाँ चला गया, एक मिनट। राइटिंग इन द यूनिट 8 फेमस कल्चरल फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड आर इंट्रोड्यूस्ड टू यू। बेटा प्लीज म्यूट करें माइक को, किसी की आवाज मुझे आ रही है। शाबाश। अच्छा जी, this says in the unit 8 famous cultural festivals around the world are introduced to you। अभी जो टेक्स्ट हमने कल परसों पढ़ा, ये सेकंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं, इसमें 8 मुख्तलिफ कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में हमें तारुफ किया गया है। मेक अ माइंड मैप ऑफ दीज फेस्टिवल्स। आप अपने जहन में एक खाका सा, एक आइडिया सा इन त्योहारों का बनाएं। Then write the names of the countries where they are celebrated in। और आपने सिर्फ इस माइंड मैप में उस फेस्टिवल का नाम लिखना है और उस पर उसके मुल्क का नाम लिखना है कि वो किस मुल्क में होता है फेस्टिवल। ठीक है, ये समझ आ रही है? पिक्चर आपको बना के भेजेंगे जी, इसकी पिक्चर बना के आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, तो मुझे पता चलेगा आपने थोड़ा सोचने का और थोड़ा लिखने का काम भी किया। ठीक हो गया? ये आपका होमवर्क होगा। फिर आगे सर व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है। मैं अभी क्लास के एंड में दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है? Yes, sir. इसकी एक्सरसाइज बी है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। इन अल्फाज का भी अपने जुमलों में, बेटा आवाज नहीं करेंगे प्लीज। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। कुछ अल्फाज आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनके जुमले बनाएं। हम यहाँ जुबानी तौर पर जुमले बना लेते हैं, लिखूंगा मैं कोई भी नहीं, हालांकि मैं एक पेज निकाल के उस पर आपके लिए राइट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस की खातिर बेटा माइक म्यूट करेंगे। और फिर आप ये भी लिख के उस पेज की भी तस्वीर बना के, या आप चाहें तो इनको डायरेक्टली ही व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज की सूरत में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, पहला है फेस्टिवल। मुझे इसका सेंटेंस कौन बना के बताएगा? अगर आपकी वीडियो चल रही हो तो वीडियो में हैंड रेज करें, वैसे अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही तो हैंड रेज का जो ऑप्शन आता है उससे हैंड रेज करें। मुईज का भी हाथ रेज्ड है। मुईज पहले आप बताएं फेस्टिवल का सेंटेंस। Travel is a great way to experience different kind of festival all around the world. थोड़ा सा आज आपकी आवाज मुईज वैसे क्लियर आती है, आज आपकी आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है हमें? फिर से बताएं। Festival. थोड़ा सा माइक को थोड़ा पीछे रखें, माइक आपकी आवाज खुद ही कैच कर लेगा। जी। Travel is a great way to experience different kind of festivals all around the world. Travel is a Great way to experience different festivals all around the world. अच्छा, आपने फेस्टिवल का वही जुमला बनाया जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। यहाँ अपने जुमले बनाने हैं। ये उमैर ने हैंड रेज किया हुआ है, पहले उमैर से पूछते हैं। जी उमैर, आप बताएं। उमैर, हाँ बोलें। Eid ul Fitr is a Muslim festival.
ईद उल फित्र इज अ मुस्लिम फेस्टिवल। वेरी गुड। इसका एक और सेंटेंस एक और बच्चे ने भी, हसीब शाह ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। हसीब शाह आप बताएं। Sir, festival are celebrated as memorable election. एक बार फिर थोड़ा सा हसीब शाह। Festival are celebrated as memorable election. इलेक्शन, थोड़ा सा जुमला ठीक नहीं बन रहा है। ये तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, लेकिन मेमोरेबल इलेक्शन नहीं कह सकते, इवेंट कह सकते हैं। चलें, मुझे रैयान ताहिर ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है सेंटेंस बताने के लिए। बोले रैयान। There are many festivals. ऊंचा बोले थोड़ा सा रैयान। हमाद 1 मिनट म्यूट रखें, जब आपको बोला जाए फिर अनम्यूट किया करें, ठीक है। रेज, आपका हैंड रेज मैंने देख लिया है। रैयान ताहिर दोबारा बताएं। There are many festivals in the world. वजील हसन ने भी हाथ खड़ा किया हुआ, लेकिन पहले हमाद से पूछेंगे फिर वजी की तरफ जाएंगे। Sir, the Holi is an Indian festival. दी होली, सिर्फ दी होली नहीं कहेंगे, सिर्फ होली। होली क्योंकि प्रॉपर नाम Holi is an Indian festival. होली इज एन इंडियन फेस्टिवल। सिर्फ इंडियन नहीं है, हिंदू मजहब के मानने वाले नेपाल में भी हैं, आपके पाकिस्तान में भी हैं, थाईलैंड में भी मेरे ख्याल से हैं। तो सिर्फ इंडियन फेस्टिवल नहीं कह सकते, ठीक है बेटा। वजीउल हसन मुझे बताएं एक जुमला। Sir, Holi is the religious festival of Hindus. वेरी गुड। होली इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ये तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अपना जुमला कहाँ से हुआ? सर ये तो मैंने खुद बनाया, मैंने नहीं देखा। देखा करो ना फिर बेटा, देखा करो ना। चलें जी, ठीक है। इससे मिलते जुलते जुमले अब आपने लिख के भेजने हैं ताकि हम उस पर बात कर सकें। फिर है नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल की मीनिंग मैंने बताई थी रिवायती, जो किसी रिवायत, किसी रस्म, किसी से जुड़ा हो। वजी आप अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि शोर ना हो। और आप अपने जो माइक है ना वजील हसन, अगर मेरी तस्वीर नजर आ रही है उसको यूं लटका दें, माइक आपका आपकी आवाज कैच कर लेगा। आप जो उठाते करते हैं ना इसको, तो उससे आवाज शोर की पैदा होती है, ठीक है जी। ट्रेडिशनल का मैं देखता हूँ, पहले अली अहमद अलवी से पूछने की कोशिश करते हैं। अली अहमद अलवी ट्रेडिशनल का कोई सेंटेंस बताएंगे? अली आप अनम्यूट करेंगे माइक तो मुझे आवाज आपकी आएगी। हैंड रेस किया हुआ है एक मोहम्मद, ये मोहम्मद वाले गैलेक्सी वाले फोन पे जो भाई हैं, वो कौन है वो बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मोहम्मद यार है, मोहम्मद मेरे ख्याल से गैलेक्सी फोन पे हैं। आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है मोहम्मद? आपको टेक्स्ट सेंड किया है इसका। जी बेटा, आपने हाथ खड़ा नहीं किया? सर मैंने टेक्स्ट सेंड किया आपको। अच्छा अच्छा जी, फिर है किसी और ने भी हाथ उठाया था। सर टेक्स्ट चेक कर लेना, मैंने मैसेज भेजा इसका। अच्छा टेक्स्ट किया है आपने? आई जी सर। एक मिनट, मेरे पास टेक्स्ट का कहाँ आ रहा है। अच्छा जी, चैट देख लेते हैं। इन्होंने मोहम्मद ने भेजा है दे प्लेड ट्रेडिशनल गेम्स। वेरी गुड, आप लिख के भी भेज सकते हैं
तो ये भी अच्छा जुमला है, शाबाश मोहम्मद। आपका पूरा नाम क्या है मोहम्मद? बोले। सर ये मैं कजन का मोबाइल यूज कर आपका नाम बता दें। रहा हूँ। मेरा नाम अली असगर है। अली असगर, ठीक है। अली असगर, आप कौन से सेक्शन में होते हैं? ए टच में। 8H में, इवनिंग से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमारे पास इवनिंग, मॉर्निंग और कोई भी सेक्शन हमारे पास शामिल हो सकता है। नौफिल, आप बताना पसंद करेंगे ट्रेडिशनल का कोई सेंटेंस? साग इज अ ट्रेडिशनल फूड। विच वन? फिर बताएं। साग इज अ ट्रेडिशनल फूड। साग इज अ ट्रेडिशनल फूड। अच्छा, जिनको साग की याद आ गई है। और मुझे किसने हाथ खड़ा किया? हम्माद ने हाथ खड़ा किया। हम्माद, आप बताएं सेंटेंस। सलवार कमीज इज आवर ट्रेडिशनल ड्रेस। शलवार कमीज इज आवर ट्रेडिशनल ड्रेस, ये क्लोथिंग, ठीक है, कह सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मुझे मैसेज आ गया है, 10 मिनट से कम रह गए हमारे पास। जल्दी जल्दी ये एक्सरसाइज करते तो हैं। मैं बताऊं? सिंबॉलिक का मुझे बताएंगे वजीउल हसन पहले। मोहम्मद ने भी हाथ खड़ा किया है। मोहम्मद मतलब अली असगर, आप लिख के भी भेज सकते हैं। सर मैंने नहीं खड़ा किया। सर सिंबॉलिक का यस मतलब सर, मैं अभी भेजता हूँ आपको। गैलेक्सी A10, ठीक है। सर और मैं किस? बताऊं? जी बताएं, नौफल ही बता दें। सर क्रिसेंट इज अ सिंबॉलिक मार्क। क्रेसेंट इज अ सिंबॉलिक मार्क, कह सकते हैं, ठीक है। सर सिंबॉलिक का मीनिंग क्या है? सिंबॉलिक का मतलब होता है अलामती, जो किसी अलामत से, सिंबल से बनती हो। जिस तरह कल मैंने बताया था, अगर हम तराजू सामने रखते हैं तो वो एक अलामत होती है इंसाफ की, अदल की, या किसी कोर्ट की, ठीक है। या किताब सामने हो तो वो अलामत होती है एक इल्म की। रैयान ताहिर ने हाथ उठाया हुआ है। रैयान ताहिर, आप बताएं। आवाज नहीं है रैयान ताहिर आपकी। सर मैंने आपको जी भेज मुझे दिया, मिल सेंड मिल कर गया, दिया मैं था। पढ़ता हूँ रैयान की सुन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी रैयान। Red color is a symbol of Chinese. रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ चाइनीज न्यू ईयर। ये तो जुमला किताब वाला है, थोड़ा सा सोचो लड़के। सर मेरा रेड, चेक कर लेना। आपने लिखा है रेड कलर आर सिंबॉलिक फॉर चाइनीज। रेड कलर एक है तो आर क्यों लगाया है भाई? और ये भी तकरीबन रेड कलर इज सिंबॉलिक फॉर सॉरी, कलर। चाइनीज, ठीक है। चले, बाकी आप मैसेजेस लिख के मुझे बाद में व्हाट्सएप पे भेजेंगे, सब हर एक, इनका एक एक या दो दो जुमले बना के। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेशन। मोहम्मद रैयान बताएंगे सेलिब्रेशन का जुमला। सेलिब्रेशन। सर सोच रहा हूँ। कोई सेलिब्रेशन का जुमला बनाएगा, बताएगा? अली सर असगर मैं जी। हम्माद, आप बता दें। अली असगर की आवाज हमें नहीं आ रही सर है। everyone is happy in celebration of Eid al-Azha. एवरीवन इज हैप्पी ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अजहा, कह सकते हैं। काशान बशीर, आप बताएं। काशान बशीर, सेलिब्रेशन सर मैंने लास्ट भी अभी फॉर सेंड किया। 15 डेज। अली असगर कहते हैं मैंने लिख के भेजा है सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 15 डेज, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट, किसकी? थोड़ा सा इसको और क्लियर करें। सेलिब्रेशन ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, सेलिब्रेशन ऑफ होली, सेलिब्रेशन ऑफ रियो डी जेनेरो वाला जो फेस्टिवल था, ठीक है। चले, काशान आपने बताना है, यस सर। बताएं। Eid al-Azha is a religious celebration. ईद उल अजहा इज अ रिलीजियस सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान, कह सकते हैं किसी हद तक। चले, 5 minutes left. जी मुझे नजर आ रहा है। फिर है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का एक जुमला सिर्फ एक बच्चे से पूछूंगा, कौन बताना पसंद करेगा? ये आईफोन 7 से हमारे साथ कौन है? अगर ये भाई बताएं। फहद मरवत भी बैठे हैं, इनसे मैं कुछ नहीं पूछ सका हूँ। हसीब शाह से आज कुछ नहीं पूछ सका हूँ। आईफोन 7 से हमारे साथ कौन है?
आप आवाज अपनी अनम्यूट करके, अपना माइक अनम्यूट करके इसका जुमला बता सकते हैं पार्टिसिपेंट्स का। कोई नहीं? फाहद मरवत बता सकते हैं? फाहद? फाहद भी नहीं। हसीब शाह? हसीब शाह हैं हमारे साथ? सर सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं। अब्दुल्ला इमरान? सोच रहा हूँ। शाबाश, इतनी देर मत लगाओ कि हमारा टाइम खत्म हो जाए। रैयान ताहिर? मैं कोशिश कर रहा हूँ जिन दोस्तों की, जिन बच्चों की वीडियो नहीं है उनसे भी बात हो जाए। वीडियो वाले तो नजर आ जाते हैं हाथ खड़ा करते हुए, शरारतें करते हुए, वो बेचारे कहते हैं सर हमसे पूछते ही कोई नहीं है। ये माइक किसका म्यूट है, अनम्यूट है? कुल्फी की आवाजें आ रही हैं, आइसक्रीम की। मेरे लिए भी एक लेके रखते हैं। हाँ जी, मैं बताऊं? चले। अली असगर पहले आप लिख के भेजें या बताना चाहें तो बता दें। अली असगर काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं। मैं लिख के भेजूं? लिख के भेज सकते हैं। सर मैं बताऊं? जी नौफल बताएं। सर मैं बताऊं? कौन? सर यहाँ मोहम्मद रैयान, आप बताएं। Sir, there are many participants in each contest. There are many participants in this contest. Very good. एक ही जुमला इसका लेना है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव होता है सजावट वाला, ठीक है। डेकोरेट वर्ब होता है सजाना, डेकोरेशन नाउन होता है सजावट, डेकोरेटिव होता है जो सजावटी, ठीक है, जो किसी चीज की सजावट के लिए इस्तेमाल होता हो। एक मिनट, कौन बताना पसंद करेगा? मुझे पहले एक मैसेज आया है, देखते हैं। हाँ जी, आई शैल बाय डेकोरेटिव पीसेस। वाह जी वाह, ये तो अली असगर बड़े तेज हैं, जल्दी से लिख के भेज देते हैं। नौफल आप बता दें एक जुमला में। शाबाश अली असगर। सर जी? थैंक यू सर। Sir, balloons are decorative for a birthday party. वेरी गुड, balloons are decorative for a birthday party. वेरी गुड। दूसरा हाथ किसने एक मिनट रेस किया है? सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। जी वेरी गुड। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और आपको नंबर देता हूं चैट वाले बॉक्स में, ठीक है? देखिए मैं लिखने लगा हूं, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। देखो सही लिखा है या नहीं। जी सही लिखा है। ये आपको क्या, ये सिर्फ मोहम्मद को गया, ठीक है। एक मिनट, एवरीवन को मैं भेजूं। क्योंकि उसके मैसेजेस आए हुए थे, सिर्फ उसको गया। अब सबको गया है, मैसेज चेक करें। नंबर सब तक पहुंचा? यस सर। चलें जी, हमारे कॉपी कर लें। जी बेटा नौफल, कम रह गए, कॉपी कर लें। चले, वो हर एक की मर्जी है। ठीक है फिर। जी सवाल क्या है अलवी साहब का? सर मैंने पीछे YouTube पे क्लासेस ली थी तो उसमें आधी चीजें मिस थी। हाँ, YouTube पे मैं थोड़ा सा इसको एडिट करके छोटा बना लेता हूँ, कुछ डिस्कशन या कुछ खामखासी चीजें इसमें थोड़ी सी काट देते हैं, ठीक है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो आपको चीज समझ ना आती हो वो आप किसी दिन पूछ लीजिएगा। किसी दिन हम एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे कि माजी की कोई चीज हो उस पर डिस्कस करने के लिए। टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।